Orangi Pilot Project, Research and Training Institute, and IBA. Rashida Rizvi Center for Constitution and Human Rights is a center which works towards the enforcement of the constitutional and human rights of the citizens of Pakistan. It seeks enforcement of fundamental and human rights on a macro level by instituting constitution petitions before the High Courts and Supreme Court of Pakistan. It also provides legal aid and assistance through a team of dedicated lawyers to various individuals, organizations, and victims. It also works towards spreading awareness of constitutional and human rights among the citizens through various publications and events such as this one. Orangi Pilot Project is a non-governmental organization which began work in Orangi town, Karachi in the year 1980. On the success of its five basic programs, namely low cost sanitation, housing, health, education, and credit for micro enterprise in the year 1988, Orangi Pilot Project was upgraded into three autonomous institutions. Orangi Pilot Project Research and Training Institute is one such institution which manages the low cost sanitation, business secure housing support program, education program, the now evolving water supply, and women's savings programs, as well as the related research and training programs. Orangi Pilot Project was headed by Ms. Parveen Rahman, and after her sad demise, the organization is now being headed by Ms. Akila Ismail, the sister of Ms. Parveen Rahman, who unfortunately, due to ill health, cannot be a part of this event today. We are very grateful to Mr. Akbar Zaidi and his associates and staff for facilitating and allowing us to have this event at this prestigious institute and for being part of this event. We are also grateful to Mr. Munira Malik, Advocate Supreme Court, for being part of this event, who is also a member of Rashid Rizvi Center for Constitution and Human Rights. Thank you. The screening of the movie will shortly begin. Thank you, everyone. I would now like to call upon stage our panelists, Mr. Akbar Zaidi, Mr. Fahim Zaman Khan, Mr. Umar Shahid, and Mr. Faisal Siddiqui to have some discussion and shed some light over the film and life of Parveen Rahman. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. मेरा नाम फैसल सिद्दीकी है. मैं परवीन का दोस्त भी था और आई एम ऑल्सो द लॉयर हु इज़ कंडक्टिंग द केस सिंस 2013. बाकी लोग ऑफ कोर्स अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा देंगे. तो इसमें कोई मॉडरेटर नहीं है. बेसिकली मुख्तलिफ लोग अपने ख़यालात का इजहार करेंगे. तो मैं आज फर्स्ट फ़हीम कि वो कुछ कहें और पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, स्पेशली परवीन के हवाले से. मेरा नाम फ़हीम ज़मान है. परवीन, I've known Akhtar Hamid Khan and Parveen Rahman for a very long time. कब से I don't remember. और ये फिल्म देख के तो I'm completely dumbfounded. So I work for Dawn. जब ये इंसिडेंट हुआ तो I was working for Dawn. 2013 we being part of Dawn tried to look into possible reasons. Obviously really short of facts. जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करना, जब भी मुलाकात हुई तो बहुत ही लिमिटेड हुई. बल्कि एक आध दफ़ा तो जब सम वेरी गुड पुलिस ऑफिसर वाज इन्वेस्टिगेटिंग तो मैंने कहा मुझे बताओ कि चलो ख़त्म तो जिसने किया इसके पीछे कौन लोग हैं. तो द आंसर वाज वेरी सिंपल. दैट्स नॉट माय ब्रीफ. दैट्स नॉट माय जॉब इज़ to figure it out कि किसने एक्चुअली गोली चलाई, कौन उसके पीछे था, गोली किससे चलवाई. तो ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस
say? Should I? Like, देखिए, जब when we were trying to investigate Parveen's murder for Dawn, for our investigative report, तो मैं अभी वो रिपोर्ट अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए देख रहा था, तो जितनी चीज़ें मैंने सोची थी मुझे आज शेयर करनी चाहिए, उससे ज़्यादा मैं उस रिपोर्ट में लिख चुका हूँ लोगों के नामों के साथ. इस फिल्म में फोकस है बेसिकली पानी पे. Unfortunately, I've been the chairman of Karachi Water Conservancy Board, so I know how illegal water hydrants किस तरह से काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, और उनको ख़त्म करना कितना आसान है रियासत के लिए. मतलब उसके लिए बुलडोजर्स चलाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ जो पानी जिन इलाकों में पानी जा रहा है उन पानी उसका टाइम टेबल बना के लोगों को बता देना कि भाई जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए ये एक टाइम टेबल है, इस हिसाब से आपको पानी मिलना चाहिए, इतना पानी है हमारे पास और ये पानी आना चाहिए. अगर उस पर्टिकुलर दिन उस घंटे पे पानी नहीं आता, चाहे वो हफ्ते में 2 दिन है, चाहे वो हफ्ते में 4 दिन है, हफ्ते में 1 दिन है, तो वो पानी मिलना चाहिए. और उसको मतलब इस पूरी माफिया को कंट्रोल करना कोई बहुत लंबा चौड़ा मसला नहीं है, बशर्ते कि रियासत खुद चाहती हो. एक बात. दूसरी बात, मेरी जो उसमें अपनी एंड आई एम कन्विंस्ड कि वाटर माफिया तो अपनी जगह पे है, मगर औरंगी पार्क प्रोजेक्ट उस वक्त गोट आबाद स्कीम के तहत गोठों की रेगुलराइजेशन पे काम कर रहा था. और वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो कि कुछ मखसूस जो लोग थे उनके मफादात पे जो है ठेस पड़ रही थी. मतलब अगर गडाप में या डिस्ट्रिक्ट मलीर में अगर एक कुछ ज़मीन पे लोग बैठे हैं और उनके पास अगर पेपर्स नहीं हैं, उनके पास कानूनी हक नहीं है, तो उनको धक्के मार के, जूते मार के, डंडे मार के, पुलिस से धमका के वहाँ से रिमूव कर देना बहुत आसान काम है. ज़्यादा जो भी उनके मुखिया हैं, जो भी लोग हैं, उनको 2-4 लाख रुपए दे दें. मगर अगर वही ज़मीन अगर किसी गोट के लिए रेगुलराइज हो गई है, तो गोट के लिए सिर्फ वो ज़मीन नहीं होती जिसके ऊपर लोग बैठे हैं, वो तो होती है. उसके साथ उनके लिए पैस्चर्स के लिए, चरागाह के लिए, उनके लिए कोई 70-76 एकड़ ज़मीन है जो उनकी सस्टेनेंस के लिए जो है वो होती है. तो एक बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो चली जाती है. और मेरे ख्याल में एक बड़ा जो मुहर्रिक रहा परवीन के कत्ल का, उसमें शायद ज़मीन का जो मसला था वो ज़्यादा बड़ा था. और एक ख़ास इलाके में, क्योंकि अगर ये जो जहाँ बैरियर टाउन बना है या गडाप के जो इलाके हैं, यहाँ पर 13 मार्च 2013 तक के बाद एक बहुत अरसे तक मज़ीद किसी किस्म की गोठों की जो रेगुलराइजेशन है वो नहीं हुई. उसके बाद नहीं हुई, चूँकि मैं खुद उस काम में नहीं था, रिसर्च में नहीं कर रहा था. एक दफ़ा 1 या 2 स्टोरीज कर ली, उसके बाद मेरा स्कोप ख़त्म हो गया. तो उसके अलावा जो रहीम स्वाति का जो रोल था और पप्पू कश्मीरी, अरशद कश्मीरी जो भी था वो, तो उनका जो रोल था रहीम स्वाति का, उस इलाके में एक वाटर हाइड्रेंट था. और वाटर हाइड्रेंट्स के लिए 2013-2014 में तस्वूर ये था कि ये वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं एक सेंट्रलाइज्ड उसके तहत, यानी कि बहुत सारे वाटर हाइड्रेंट्स, चाहे वो दरअसल चन्ना में हो, चाहे लांगेजी में हो, चाहे औरंगी में हो, वो एक तरह से किराए पे कुछ ताकतवर लोग, जिसके अंदर हुकूमत के एक से ज़्यादा मिनिस्टर्स के नाम आते थे सिंध हुकूमत के, और उसमें जो क्योंकि वो उस वक्त वो रहीम स्वाति वो अपने आप नहीं चला रहा था, बल्कि वो भी जो है एक तरह से उसने रेंट आउट किया हुआ था, शायद 2 लाख रुपए वगैरह के ऊपर. ये वो सारी चीज़ें थी कि जिनको
ہمارا خیال یہ تھا کہ جرم چاہے وہ ڈرگس ہوں، چاہے گنز ہوں، چاہے ہارٹ کلرز ہوں، اور زمین ہو، پانی ہو، ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اس شہر میں خاصی ڈائلیوٹیڈ ہیں، مطلب وہ مطلب بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. تو لیو اٹ ٹو ادرس ٹو. صاحب اکبر صاحب. جی بہت شکریہ. میرا نام اکبر زیدی ہے، میں آئی بی میں پڑھاتا ہوں. فیصل صدیقی نے بہت زیادتی کی ہے کہ مجھ سے کہا کہ مجھ کچھ کہوں، کیونکہ حسب عادت میں ایسی کوئی بات کہوں گا جو کسی کو پسند نہیں آئے گی، اور میرا پورا ارادہ ہے ایسی بات کہنے کا. میں پروین کو اور انور راشد کو اس فلم میں دیکھتے ہوئے مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے کہ ان کو تو میں 1983 اور 84 سے جانتا تھا، اور ان کے ساتھ کام کافی کیا ہے. یہ جو انور راشد جو مائکرو فائنانس وغیرہ کرتے تھے اس کا ریویو بھی کیا ہے، او پی پی کا کہ 2 یا 3 ریویوز کیے ہیں. لیکن اور میرے دوست یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مجھے شعر و شاعری کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایک شعر پڑھنا ضروری ہے، پڑھ لیتا ہوں. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. مجھے بہت عجیب سا لگا ہے کہ اس فلم میں وہ شخص جس کے گھر میں پروین سے ملتا تھا بہت دفعہ ملا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہ اس کمرے میں نہیں ہے، وہ ہے عارف حسن. I find this very, very strange. I know people can make films that they can do, they can make biopics, they can make fiction. But I've also studied history. تھوڑا بہت ہسٹری میں نے پڑھا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ تاریخ جو ہے اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور چیزیں جو تاریخ میں لکھی ہوتی ہیں آپ کو اگر بری بھی لگیں، آپ کے ان کے ساتھ ذاتی اختلافات بھی ہوں، ان کا ذکر کرنا آپ کو فٹ نوٹ میں ڈالنا چاہیے. تو میں یہ ایسی فلم پروین رحمان پر میں تسلیم نہیں کر سکتا، تسلیم از ناٹ دا رائٹ ورڈ، میں مان نہیں سکتا جس میں عارف کا نہ ذکر تھا نہ ادھر ہیں وہ. اور یہ میں نے پہلے بھی فیصل سے کہا تھا، اور شاید اس لیے انہوں نے مجھ سے پہلے بولنے کو نہیں کہا تھا، آخری منٹ پہ انہوں نے کہا کہ بول لینا، کیونکہ ابھی میں نے ان کے کان میں بھی ایک ایسی بات کی تھی کہ میں ایک ایسی بات کہوں گا جو پسند نہیں آئے گی شاید کچھ لوگوں کو. تو اسی سے رہا ہے وہ عارف حسن کے ساتھ رہا ہے، اور عارف حسن کے تھرو رہا ہے، اور اختر حمید خان کے ساتھ رہا ہے. میں 1983 سے آنورڈ جب میں کراچی آیا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو انہی کے ساتھ کام کرتا تھا. عارف حسن کو میں اپنا گورو مانتا ہوں، میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ پروین، عارف، میں ہم بہت ملا کرتے تھے، انور راشد بھی، دوپہر کو، شام کو، رات کو، صبح کو، مختلف وقتوں پہ. اور عارف یہ کہتے تھے کہ میں عارف کا ذکر بار بار کر رہا ہوں کیونکہ ہی از ایبسنٹ، اینڈ وین یو ہیو این ایبسنٹ سوشل سائنٹسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹس اے ویری لاؤڈ نوائز، دی ایبسنس، the noise of the absence. So عارف used to say that Parveen is the most talented student. ایک اور ان کا کلاس فیلو تھا، وہ وہاں پہ اب سوات میں رہتا ہے، اور پروین سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھی. اور پروین کے ساتھ اور انور راشد کے ساتھ، عارف کے ساتھ، میں نے ٹیٹو ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے، طلعت اسلم، ہم نے کئی 100 راتیں شامیں گزاری ہیں. عارف اور پروین کی بے انتہا جنگ ہوتی تھی، مختلف ایشوز پہ ہوتی تھی. وہ ڈانٹتے تھے، وہ جاتی تھیں اور واپس عارف کے پاس دوبارہ آ کے ان کو گرو کہتی تھیں، گرو آپ بتائیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، کیا کرنا چاہیے. تو یہ آخری دم تک ان کا ایک رشتہ تھا جو I will say this and I don't know what the consequences are, but مجھے بہت افسوس ہوا ہے اور بہت عجیب سا لگا ہے کہ وہ غائب ہیں. پروین تو چلی گئیں، عارف اس فلم سے غائب ہے، اور کچھ نہیں کہوں گا. شکریہ. میرے خیال میں مرزا غالب نے جب یہ شعر کہا تھا، نہیں، مرزا غالب نے جب یہ شعر کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں، تو میرے خیال میں وہ 200 سال پہلے اکبر کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. میں نے ان کو کبھی روکا نہیں کسی بات کو کہنے کو، ان کا اپنا اوپینین ہے، ہی از انٹائٹلڈ ٹو. اب میں عمر سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ کہیں. تھینک یو.
मेरा नाम उमर शाहिद हामिद है, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, and I never met Parveen Rahman, but I have met Parveen Rahman's ghost. And the reason I say that is that 2018 में, 5 years after Parveen's murder, I became, I think, the third or fourth person who was handed the investigation. और उसमें जो मेन सवाल था, वो जैसे फ़हीम साहब ने कहा कि वेरियस एफर्ट्स उससे पहले हुई थी, बंदे पकड़े भी गए थे. एज यू सॉ इन द मूवी दैट इनिशियली पुलिस ने एक तालिबान के लीडर को इस केस में मुलविस करके कहा था कि ये तालिबान ने मारा है. बट द क्रक्स ऑफ इट वाज कि नो वन कुड गिव अ स्ट्रेट आंसर एज टू व्हाट द मोटिव वाज. ठीक है, तालिबान ने मारा, क्यों मारा आखिरकार, MQM ने मारा, क्यों मारा, एनी XYZ. And so when when I got this, और जो उस टाइम ये इन्वेस्टिगेशन टीम नए सिरे से बनी थी, it was like a cold case. And so we sort of certainly I got all of my first-hand knowledge through the writings of Parveen. That was where certainly मेरी, despite having been a lifelong citizen of this city, मेरी आंखें खुली और बहुत से जो इस तफ्तीश के पहलू थे वो क्लैरिफाई हुए मेरे लिए. एंड दैट्स व्हाई आई से कि मैं परवीन से कभी नहीं मिला, बट आई हैव met with and conversed with her ghost through her writings. फ़हीम साहब ने कहा कि ये जो इशू था, कराची के ये जो दो इशूज़ हैं, एक पानी का, एक ज़मीन का. इनफैक्ट अगर आप बहुत से इस किस्म के शहर देखेंगे, लाइक रियो डी जेनेरो और एनी अदर सच प्लेसेस, fundamentally it's the same issue, that there are shrinking municipal resources और उन्हीं पर सारी जंग चल रही है. और उस जंग में जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली एंटर हो जाती हैं, माफियाज एंटर हो जाते हैं. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब हम ये वाटर माफिया की बात करते हैं जिस पर परवीन और OPP ने इतना काम किया, आपने कहा कि इट वाज देयर वाज अ फीलिंग, फ़हीम साहब, देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड थिंग. मैं आपको बताऊं कि इट वाज टू द एक्सटेंट दैट ये एक ऐसा, एंड इनफैक्ट ऑल्सो जिसको हम लैंड ग्रैबिंग पुलिस की ज़बान में कहते हैं, कि ये एक ऐसे सॉर्ट ऑफ मनी मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं कि इसमें ऑल पॉलिटिकल, रिलीजियस, सेक्टेरियन आइडियोलॉजी सेट असाइड. कराची की लैंड ग्रैबिंग में, कराची की वाटर माफिया में, जो आप सियासी जमात का नाम ले लें, तालिबान का नाम ले, चाहे वो तालिबान उस स्टेट के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वाटर माफिया में वो बराबर के शरीक थे और हिस्सेदार, चाहे आप पुलिस का नाम ले लें. So all of these actors or stakeholders were also stakeholders in these criminal enterprises, and that is what we tried to lay out in this investigation. कि कम से कम, obviously we had a lot of difficulties that connecting it. There's one thing making a case as to a motive, and there's another thing proving it in a court of law. And one of the biggest deficiencies that we suffered from was that जो बहुत सी initial level पर तफ्तीश में problems या गलतियाँ पुलिस ने की, obviously due to the passage of time, a lot of the evidence, technical evidence होती है, call data records were no longer available. But what we tried to do was we tried to piece together a picture of what we thought had happened. And I agree with फ़हीम साहब कि जो पानी का मसला फिल्म में हाईलाइट हुआ है, यकीनन we don't rule it out, लेकिन पानी के मसले में ये था कि Parveen and OPP, Faisal, if correct me if I'm wrong, had highlighted the issue of the water mafia and the illegal hydrants in 2008, 2009. A full 5 years or so before she was murdered. And उस ज़माने में 2008-9 में इस पर वेरियस शोज़ चले, टीवी पर भी बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो नोटिस लिया था, एंड इनफैक्ट उसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट जितने भी इलीगल हाइड्रेंट्स हैं बंद करवाए गए. एंड देयर यूज्ड टू बी, आई थिंक, अ वाटर कमीशन जो कि हर हफ्ते कराची पुलिस चीफ को बुलाती थी कि भाई कोई हाइड्रेंट तो नहीं खुले. सो आई टेक दैट एज अ पॉजिटिव, दैट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द OPP. और ये जो उनका मर्डर था, हमारा जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसकी राय ये थी
कि probably not ruling out कि of course it could have been related to the water issue, but it was more likely related to the land issue because that was more current. इसको वाटर माफिया की एक्सपोजर को 5 साल गुजर चुके थे, जो गोट आबाद स्कीम के इश्यूज थे और जो ये चीज़ उठ रही थी कि ये गोट जो हैं 2,500 या कितने इनिशियली शायद 150 या कुछ जो सरकारी खाते में थे और 2,500 से ज़्यादा OPP की एफर्ट्स की वजह से ऑफिशियल उसमें रजिस्टर करवाए गए. एंड ऑब्वियसली जो वेरियस लैंड माफियाज थी या ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स थे जिनका इंटरेस्ट था उन इलाकों में, और ये सारे उन इलाकों में थे जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, नॉर्दर्न बाईपास हो गया, मंगो पीर हो गया, मलीर की तरफ हो गए. And so we felt that it was more due to that rather than due to the water situation. But yes, ye unfortunately humse, and we highlighted this and documented this in the report to the Supreme Court. लेकिन ये ज़रूर था कि unfortunately due to the passage of time, were we able to bring a conviction as a result of that? That sadly we've not been able to do so far. But if there's one thing that Parveen's life teaches all of us is that even in a city where there is no hope, there are always some people who provide hope, and Parveen was one of those people. जी बिल्कुल बिल्कुल. You see, my problem, first of all, I have huge respect for Uma as a police officer, and to be very honest, there are very few police officers in this city or in the province or the country that I have respect for. Said that, देखिए, my biggest problem was कि जब ये परवीन का जो मर्डर था, assassination था, वो एक ख़ास किस्म के लोगों के लिए, एक ख़ास सिविल सोसाइटी के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, मगर पूरे कराची शहर के लिए जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इससे पहले जो है इसी तरह से बिन मौत मारे गए थे. तो आखिर क्या वजह थी कि सुबह 10 बजे 10:30 बजे कारी बिलाल जो है उसको मार दिया गया. पहली बात तो देखिए, कारी बिलाल के मेरी जो उसमें थी, फिल्म में तो दिखाया मोटरसाइकिल पे जो है जो उन्होंने जाके बैक मिली उस इलाके से, वो ये थी कि कारी बिलाल का कोई झगड़ा हुआ था और वो जख्मी हालत में थाने गया था और थाने वालों ने उसको मार के, और by 4 PM the DIG West, who incidentally happens to be not a bad officer, so Javed Odo DIG West थे, मगर ये स्टैंडर्ड रेगुलर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि परवीन रहमान के जो है ना, मतलब बिगेस्ट क्वेश्चन इन माय माइंड वाज कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि लिटरली, हाँ मैं जस्ट बात कर लूँ, हाँ, because these questions in fact were addressed जब हमने ये रिपोर्ट शाये की. in fact हमने उसमें ये फैसला किया. Our conclusion was that in fact the entire episode of Qari Bilal was false. आपने जो बात की ना कि उसको थाने में मार, इनफैक्ट पुलिस उसको मारे नहीं था. कारी बिलाल तालिबान का एक वहाँ लोकल लीडर था. He was killed in a local dispute with another Taliban faction. उसकी लाश पुलिस वालों ने उठाकर बाद में क्लेम कर ली कि जी हमने इनकाउंटर में मारा. अब बदकिस्मती से जो हमारे एक कल्चर है हमारा कि उसमें क्योंकि परवीन रहमान केस इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और उसमें बड़ा प्रेशर था, जो उस वक्त के अफसरान थे, they decided that it was a very easy fit to kind of say कि जी ये इसका वो है. और ऐसे again you've been here much longer than I have, ऐसे बहुत से माजी में भी वाक़े हुए. So they tied it up very conveniently, but we said in our report that in fact we discarded the entire Qari Bilal episode as having nothing to do with the murder of Parveen Rahman. So I agree with that. My only thing is कि एक तो जो मैंने वहाँ पर उस इलाके में कई दिन वहाँ गुजारे इमीडिएटली आफ्टर, उसमें जो चीज़ मतलब मेरी थी वो ये थी, कारी बिलाल कहीं इसकी डेड बॉडी नहीं उठा के मारी. कारी बिलाल जख्मी हालत में आफ्टर दैट फ्यूड थाने गया था, ठीक है, एंड देन ही वाज. अच्छा मेरे नहीं वो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, फॉर द DIG, देखिए
DIG से पहले एक SP का लेवल है, एक SSP का लेवल है, फिर एक DIG का लेवल है. For them 10 बजे से 4 बजे के दरमियान पब्लिक अनाउंसमेंट होना, that gave me this feeling कि इस कत्ल के जो डांडे हैं ये कहीं बहुत ज़्यादा ऊंची जगह पे हैं जहाँ पर ये खटाखट ये किया गया. और दूसरी चीज़ जो आपने ज़मीन की बात की, वहाँ ऑलरेडी उन ऊंचे लोगों के टेंटिकल्स मौजूद थे, ठीक है ना. वैसे दिस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी सेड इन द स्टोरी. जर्नलिस्ट और पुलिस वालों का जो झगड़ा है बड़ा प्रॉब्लमेटिक देखिए, let me just talk about something else apart from, of course, Parveen's work, which is well known, as well as Umar, of course, knows much more about the various aspects of why, how she was murdered. Akbar has talked about absences, which in themselves are important. But let me share with you my own personal journey with both Parveen and Parveen's case. मेरे लिए क्या इस परवीन के केस में एक तरीके से what do I take away from my experience? I mean, I've not known Parveen for a very long time, not very well. I met her a couple of times, not really very, for a long period of time. Met her for, I mean, really got to know her जब she called me for a lecture in December 2012 on the बल्दिया फैक्ट्री फायर. वो अख्तर हमीद ख़ान का एनुअल मेमोरियल लेक्चर होता है, तो उसी वक्त वो बल्दिया फैक्ट्री फायर हुआ था, तो आई वॉज डूइंग दैट केस. So she called me for that, and of course I was very December का month था, we had not even buried the bodies. I was very pessimistic and despondent at that time, and that is where I really discovered Parveen. पहली तो बात है कि my initial impression about her was कि she's just crazy. एक तो since then, whenever I've seen her, she was always smiling. I've never seen a person smile as much as Parveen. That is why when I heard the news in my office, I came down from the first floor and saw it on TV. All I could remember about Parveen is her smile. और कोई चीज, कोई इमेज उसका रहता ही नहीं. तो एक तो, I mean, this is a very minor thing people think, but what a person who is able to smile in a city like Karachi every day. I mean, pure joy, a life of pure joy. और उससे ही, I mean, वो जो उसकी स्माइल थी और उसका ऑप्टिमिज्म था, हम तो बहुत डिस्पॉन्डेंट थे उस वक्त उस केस के हवाले से कि कुछ नहीं होगा. लेकिन द रीज़न आई थॉट दैट शी वॉज अ बिट मैड इज बिकॉज व्हेन आई टोल्ड हर कि ये भी हो रहा है और ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ, शी सेड नहीं, तुम तो जीतोगे. आई रियली थॉट शी वॉज क्रेजी. सो बट इट्स लाइक एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. I mean, and I think that's the first reason we decided to take up her case, which was very very difficult at that time. I mean, जिन लोगों ने डिसाइड किया, कीला हो गए, अनवर राशिद हो गए, आरिफ साहब हो गए, मेरा भी उसमें थोड़ा बहुत रोल था. One thing was that we can't forget her. So वो केस जीते हारे जो भी हो, लोगों को भूल जाए. I mean, इससे ज़्यादा बुरे लोग कौन हो सकते हैं जो लोगों को भूल जाए. I mean, that was the first thing which came to my mind when I started this case. The second was a purely strategic thing. देखिए, अगर हम 2013 में इस चीज़ को ना शुरू करते तो OPP बंद हो जाता. It had virtually closed down.
So this case was really like a deterrence. So regardless of आपके जो भी moral वो होंगे inclinations या justice के लिए inclinations होंगे, इन cases की बड़ी अहमियत होती है in terms of deterrence. और जो हमने सीखा कि उसके बाद people who were afraid to go to APP, OPP, who were afraid to work there, OPP started opening. तीसरी जो बात है वो ये है कि आई मीन जैसे मैंने कहा मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस था परवीन के साथ, बट what I wanted to keep alive is her inspiration. A very inspiring person. Not simply ये लोग समझते हैं inspiring है क्योंकि वो लोगों के लिए काम करती, but a very inspiring person. मैंने कहा मैं तो वो जो काम करती थी, but her amazing joy, her amazing optimism, her amazing smile, and this is what we've tried to even keep alive through the case, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई है और आपने इसमें ज़रा उसको बहुत ज़्यादा सीरियस दिखा दिया है फिल्म में. It was never this serious actually. जो चौथी बात है और ये अकीला में बहुत स्ट्रॉन्ग है, and all credit to अकीला that they've Anwar, Rashid and Akila have faced multiple death threats, and the principal accused, regardless of the larger purpose, the principal accused involved in this case, Rahim Swati, वो 60-70 मर्डर तो कर ही चुका है. So I mean, you are dealing with extremely dangerous people. So all hats to these people that they have continued with this for the last 7-8 years. So I mean, ये 3-4 चीज़ें हैं वो हम किसने मारा किसने नहीं मारा. But what I take from this whole thing is that जो अकीला ने मूवी में भी कहा, when you get involved in these people, believe me, what I've seen, and that is where I disagree with Fahim a bit, and I'll tell you why, is that it makes you better people. ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है. जब आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, it brings out things in you, it brings out whatever. So it's like, it's not about Parveen, it's about you. और ये चीज़ मैंने इस केस में देखी, कमाल की चीज़ देखी. देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो फ़हीम कह रहे हैं कि अगर इस परवीन के कातिल छूट जाते हैं, जो इमीडिएट कातिल थे या जो लार्जर पर्पस था, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी पुलिस पे लाई करती. They destroyed the case, especially the initial officers who were involved, whatever their motive was. बट मैं आपको बताऊं कि इस केस को रिवाइव हो ही नहीं सकता था if there were the same police officers who did not revive the case, at great risk to themselves. There were a lot of pressures, lot of things. उसमें of course Umar is one of them. इनसे पहले a very a person who really revived the case at the risk of his life, Akhtar, SSP Akhtar, and then of course the senior leadership of the police. I mean, regardless of Fahim's critique, I have no doubts कि ये केस जिस हाल में है इस वक्त उसमें है मसाइल, और जो इमीडिएट गैंग था जिसको पकड़ा हुआ है वो पॉसिबल ही नहीं था विदाउट द पुलिस. आई मीन इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल. तो मेरे ख्याल में मीर थोड़ा सा गलत कह गए जब उन्होंने कहा मीर के असादा वो बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते. इसमें उसी अत्तार के लौंडे ने दवा दी. तो ये एक अमेजिंग चीज़ सामने आती है इस केस से कि एक्चुअली वी आर टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट इन दिस सोसाइटी. सॉरी, पेसिमिस्टिक अबाउट. मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग सामने आते हैं और इस एलीट में से सामने आते हैं. इफ़ देर इज़ ए बर्निंग डिज़ायर फॉर क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, ये बड़ी अजीब सी एक मिस्टीरियस चीज़ है कि जब लोग इंसाफ के लिए या तो नहीं बढ़ते तो सब उनको पीछे धक्का देते कि सही किया और
थपथपाते हैं कि हाँ ये तो अक्लमंदी की चीज़, बट लोग जब बढ़ते हैं आगे, इनिशियल थ्रेट्स होते हैं, बट देन यू सी सो मेनी पीपल हु हेल्प यू आउट. So it's an amazing thing which we've discovered in this case, both in terms of people in the state, both people in the judiciary, and in terms of the mobilization which was critically important to take this case forward. So मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि जो लोग चले जाएं और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो उनको याद रखें और उनके लिए उनके इंसाफ के लिए कुछ करें. इट विल मेक यू बेटर. थैंक यू. जी जी, अगर आपको आखिर में कुछ उमर वुड यू लाइक टू ऐड, तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे. आई थिंक फ़हीम साहब, तो फ़हीम मस्ट हैव द लास्ट No, वर्ड. no, no, no. It's not about the last one. देखिए 1911 में न्यूयॉर्क मैनहट्टन में एक फैक्ट्री का फायर हुआ था, शायद 24 मार्च थी और समथिंग. उसमें कुछ 100 के करीब लोग जो थे जल के मर गए थे. उसके बाद अमेरिकन ने अपने रेजिडेंशियल एरिया से फैक्ट्रीज निकाली और वो कवानीन बनाए जिनके बाद उस तरह का इंसिडेंट, जो उस वक्त तारीख का सबसे बड़ा उनका एक इंडस्ट्रियल फायर का इंसिडेंट था. हमारे यहाँ बल्दिया में फैक्ट्री का फायर हुआ और मुझे आज भी याद है कि उस, और जैसे अभी कोरंगी में हुआ है, कि लोगों को निकलने की गुंजाइश नहीं थी, खिड़कियों में ग्रिल्स लगे हुए थे, दरवाजे बंद थे. वही अभी मेरान टाउन में हुआ. आज आप मेरे साथ चलिए बल्दिया की फैक्ट्री के आसपास, उसमें देखिए तमाम फैक्ट्रीज की खिड़कियों में ग्रिल्स लगी हुई. मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ना लगे हो तो आप मुझे फायर इंजन के नीचे दे दीजिएगा. आप मेरे साथ चलिए मेरान टाउन में, आसपास तमाम फैक्ट्रियों की. अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि रियासत हैज फेल्ड. हमारे जो अफसरान हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चाहे डीसी हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. परवीन का मर्डर हुआ, सबीन महमूद का मर्डर हुआ, इसी कॉलेज के इसी के साद अजीज ने मर्डर. आज किसी को ये भी नहीं पता कि साद अजीज है कहाँ, जबकि मैं पूरी जिम्मेदारी से उसके ऊपर भी जितनी इन्वेस्टिगेशन थी, साद अजीज नॉट सम अल-कायदा और तालिबान, ही वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय, मतलब डायरेक्टेड बाय, और मतलब जो कुछ हुआ वो एजेंसीज की वजह से हुआ. हमारा मसला जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि बहसीत माशरा, हम बहसीत मुल्क, कौम, हम सुधरते नहीं. जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक लोग बिकते रहेंगे, जब तक मौका परस्ती करते रहेंगे, तो चाहे वो परवीन रहमान हो, चाहे वो सबीन महमूद हो, हम में से भी किसी का नंबर आ सकता है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा. इसलिए ये पैसे नजर. बहुत शुक्रिया. पेसिफिज्म पे तालियां कम ही बजती हैं. अच्छा, कैन आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू रिफ्रेशमेंट्स एंड वी कैन. आप बात कर उस वक्त. जी, मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट सवाल है. जरा चाय पे इसको डिस्कस करें. इधर ही, देयर रिफ्रेशमेंट्स, प्लीज जॉइन अस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू.